आगे बढ़ते खबरों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर अमेरिका से तीखा हमला बोला। न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि वो भविष्य के बारे में कभी बात नहीं करते और हमेशा अपनी विफलताओं के लिए अतीत में किसी और को दोष देते हैं। राहुल ने ओडिशा के बालासोर ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए 60 सेकंड का मौन भी रखा। And the RSS are incapable of looking at the future. They are incapable. उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। निगाहें आरएसएस और बीजेपी पर रहीं, निशाने पर फिर पीएम मोदी आए। अमेरिका में भारतीय समुदाय से रूबरू राहुल गांधी पीएम मोदी को पीछे देखने वाला ड्राइवर बता गए। कार हादसों का उदाहरण देकर दिल की बात कह गए। टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्स, भैया पीछे देखो। नाउ यू थिंक अबाउट इट, all of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने। पीएम मोदी को न्यू इंडिया नाम की कार का ड्राइवर करार देते हुए राहुल ओडिशा के रेल हादसे तक पहुंच गए। रेल मंत्री से सीधा इस्तीफा मांगने की बजाय राहुल गांधी कांग्रेसी रेल मंत्रियों का उदाहरण देकर मौजूदा सरकार को शर्मिंदा कर गए। नरेंद्र मोदी जी, he is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror, and then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers. You listen to the Prime Minister. You will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. So, I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I am resigning. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की मौजूदा सरकार हकीकत से आंख चुरा रही है, मुश्किलों का हल ढूंढने की बजाय बहाने बना रही है। So this is the problem that we have back home. That we make excuses and we are not accepting the reality we are faced with. The reality we are faced with is our unemployment numbers and the fact that we need to make sure that all our youngsters are productive and get a job. And I believe, and one of the reasons I have come here is because I believe that if we want to build an India where the vast majority of our youngsters are employed, one of the things we have to think about is the bridge between India and the United States. Challenge the Chinese have placed on the table. भारतीय समुदाय के सामने राहुल गांधी ने देश की मौजूदा सियासी लड़ाई का भी जिक्र किया। कांग्रेस को महात्मा गांधी और आरएसएस को गोडसे का नुमाइंदा बता दिया। A fight between two ideologies, one that we represent and the other, of course, that the BJP and the RSS represents. I think the simplest way to describe this fight is on one side you have Mahatma Gandhi and on the other side you have Nathuram Godse. That's the best, most precise way
most precise way that I can say it. On one side, a brave man, NRI like you, in fact, probably the most impactful NRI that India has had in many, many years. Humble man, simple man. भारत जोड़ो यात्रा से सुर्खियों में आई मोहब्बत की दुकान का जिक्र अमेरिका में भी बार बार हुआ। भारतीय समुदाय के सामने राहुल ने इसे ही नफरत के खिलाफ लड़ाई का इकलौता हथियार बताया। This is Congress party's power. We are ready to. We are not being violent. We are not being aggressive. Right? We are not being nasty. That is our strength. We will not change our behavior. We will not change our behavior. Because you cannot, the thing is you cannot, please understand, you cannot cut hatred with hatred. It's impossible. It is impossible to do. I'm not interested in trying to cut hatred with hatred. मैंने बोला था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। हम आपके लिए आपका काम थोड़ी करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे। न्यूयॉर्क में भी राहुल ने न्यायपालिका और मीडिया पर हमले का हवाला दिया। आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा करने को सबकी जिम्मेदारी बताया। There is an attack on the democratic structure of our country. Full scale attack on our institutions, on our judiciary, on our media, and it is your responsibility and our responsibility to defend the idea of India. Modern India cannot exist without our constitution and without our democracy. देश की सत्ताधारी बीजेपी जो राहुल गांधी को कभी सीरियस नहीं लेती, उसकी पूरी पलटन अमेरिका में राहुल गांधी के बोलते ही कांग्रेस पर हमलावर हो उठी। कांग्रेस और बीजेपी के नेता गुत्थम गुत्था हो गए। सियासी अखाड़े में दूसरी पार्टियां भी कूद पड़ी। इसकी पूरी जांच हो रही है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो रेल मंत्रालय के अंदर नहीं होता, वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो उसकी जांच कर रहा है। और इस पर कांग्रेस पार्टी उन लाशों की तस्वीर ट्वीट कर रही है, दिखा रही है। ये लाशों पर राजनीति बंद कीजिए। जिस तरह से वहाँ बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने उनसे इंटरैक्ट किया है, उनके साथ बातचीत की है, इन तमाम चीज़ों से पूरा कहा जाए कि मोदी मंत्रालय, मोदी सरकार घबराई हुई है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो जब सुनने को तैयार नहीं है तो फिर आप परेशान क्यों हैं? और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। जो बातें उन्होंने कही हैं वो सब पहले से लोगों के सार्वजनिक है, वो कोई छुपा हुआ नहीं है। कि वो उनके इतिहास को याद दिलाते हैं तो उनके दिल में ठेस तो लगनी है, स्वाभाविक है, क्योंकि हम इतिहास से सीखते हैं और इतिहास से ही आगे बढ़ा जाता है। इतिहास में हमसे क्या गलतियां हुई है और किसने गलतियां की है, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी को सच्चाई पता चलता है तो उनके दिल पर तो ठेस लगेगी। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को लगी है इस ठेस तो। लेकिन बिल्कुल सही कहा राहुल जी ने, और जिसका बहुत अच्छा प्रतिसाद आया है कि हमेशा लोगों के ऊपर डालना, भ्रमित करना लोगों को, और लोगों को वो गलतियां जो भी की है वो 70 साल करके, अभी आप भी तो 9 साल में आए हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि रेलवे मिनिस्टर ने पहली बार अगवा कर दिया था, वो नहीं करते हुए उन्होंने अभी ये सब जिम्मेदारी झटकने का काम कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। और राहुल जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि रेयर मिरर में देख के आप आगे गाड़ी नहीं चला सकते, वही काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। रविवार को भी राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर मोदी सरकार को निशाना बनाया था, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।